સંસદથી સડક સુધી સંગ્રામ। પોલીસે વિપક્ષના સાંસદોની માર્ચને અટકાવી। વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીની આગેવાનીમાં વિપક્ષની માર્ચ। પોલીસે વિપક્ષની માર્ચને મંજૂરી નથી આપી। સંસદ ભવનથી એસી ઓફિસ સુધી વિપક્ષની વિરોધ માર્ચ। પોલીસે આ માર્ચને અટકાવી। વોટર વેરિફિકેશન મુદ્દે વિપક્ષ હાલમાં રસ્તા ઉપર ઉતર્યું છે। રાહુલ પ્રિયંકા સહિત 300થી વધુ સાંસદોએ કૂચ કરી, પરંતુ દિલ્હી પોલીસનું કહેવું છે કે આ માર્ચ માટેની મંજૂરી લેવામાં નથી આવી। એક બાજુ સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 16મો દિવસ, લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થયા બાદ વિપક્ષના હોબાળા બાદ લોકસભા બપોરે 1 બાજુ 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે, તો બીજી તરફ વિપક્ષના 300 સાંસદોએ મકરદ્વારથી ચૂંટણી પંચ કાર્યાલય સુધી કૂચ શરૂ કરી। વિપક્ષી સાંસદો હાથમાં બેનર સાથે જોવા મળી રહ્યા છે। આગળ રાહુલ ગાંધી આ માર્ચની આગેવાની કરતા જોવા મળ્યા। વોટ બચાવોના બેનર્સ સાથે ચાલી રહ્યા છે આ કોંગ્રેસી કાર્યકરો, વિપક્ષના સાંસદો। દિલ્હી પોલીસે કહ્યું હતું કે ઇન્ડિયા બ્લોકે કૂચ માટે કોઈ જ મંજૂરી લીધી નથી। લોકસભા અને રાજ્યસભાના વિપક્ષી પક્ષોના સાંસદો સંસદના મકરદ્વારથી તેમણે માર્ચ શરૂ કરી છે, જેમાં હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો। ચૂંટણી પંચ કાર્યાલય સુધીની આ કૂચ। દિલ્હી પોલીસનું કહેવું છે કે મંજૂરી વગરની આ કૂચ કરવામાં આવી, જેના પરિણામે તેમને અટકાવવામાં આવ્યા છે। અખિલેશ યાદવ પણ જોવા મળી રહ્યા છે વિરોધમાં, અને તેમની પ્રતિક્રિયા લેવાનો મીડિયા કર્મીઓ પણ પ્રયાસ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। બેરિકેડની ઉપર ચડેલા જોવા મળ્યા અખિલેશ યાદવ, સાથે તમામ વિપક્ષી સાંસદો પણ જોવા મળ્યા છે। દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે તેઓ રેલિંગ કૂદીને આગળ જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। શક્તિસિંહ ગોહિલ જોવા મળી રહ્યા છે। શક્તિસિંહે કહ્યું કે આગળ નથી જવા દેવામાં આવી રહ્યા। चोर है इलेक्शन कमीशन। ચોર છે ઇલેક્શન કમિશન ચોર છે એવો આરોપ લગાવ્યો વિપક્ષી સાંસદોએ। તો શક્તિસિંહ ગોહિલનું કહેવું છે કે આ તે કેવું લોકતંત્ર કે જ્યાં રજૂઆત કરવા દેવામાં નથી આવી રહી। અખિલેશ યાદવ, શક્તિસિંહ ગોહિલ સહિતના તમામ સાંસદોએ બેરિકેડ તોડીને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કર્યો। મોટી સંખ્યામાં વિપક્ષી સાંસદો જોવા મળી રહ્યા છે। વિપક્ષની માર્ચને એક બાજુ મંજૂરી આપવામાં નથી આવી, પણ છતાં તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે। 300 જેટલા સાંસદોએ કૂચ કરી ત્યાં બેરિકેડ લગાવવામાં આવ્યા છે ચૂંટણી કાર્યાલય પર, પરંતુ આ બેરિકેડને કૂદવાની કોશિશ કરી વિપક્ષી સાંસદોએ। જોરદાર સંગ્રામ જોવા મળી રહ્યો છે। વોટ ચોરીના આરોપ ઉપરનો આ સંગ્રામ જોવા મળી રહ્યો છે। इलेक्शन कमीशन को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। 300 से ज्यादा एमपी लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पे मार्च किए हैं। इनका सारा खुलासा जो हुआ है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख के अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग मेंबर्स को यहीं अरेस्ट करके यहीं रोक के मिलने नहीं दे रहे हैं। चुनाव कमीशन के पास हमारी बात तक रखने के लिए नहीं जाने देते हैं, क्योंकि इनके मन में चोर है। अगर कुछ गलत नहीं हो रहा है तो चुनाव कमीशन तक एमपीज को क्यों नहीं जाने देते हैं? मेंबर पार्लियामेंट, उसका अधिकार है लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने का। अगर चुनाव कमीशन को मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, छोड़ दो मुझे। डेमोक्रेसी का कत्ल बर्दाश्त नहीं। પોલીસે એક બાજુ વિપક્ષની માર્ચને મંજૂરી નથી આપી, પરંતુ વિપક્ષ અડગ જોવા મળી રહ્યું છે। તમામ સાંસદોનું કહેવું છે કે શા માટે અંદર જવા દેવામાં નથી આવતા, ચૂંટણી પંચ કાર્યાલયમાં મળવા દેવામાં નથી આવતા। શક્તિસિંહ ગોહિલે આકરા પ્રહાર કર્યા। શક્તિસિંહ ગોહિલનું કહેવું છે કે જો એમના મનમાં કોઈ ચોર નથી, કોઈ પાપ નથી કર્યું, કોઈ ખોટું નથી કર્યું, તો પછી શા માટે મળવા નથી દેવામાં આવી રહ્યા। उसके बाद सब वापस चले जाएंगे, किसी तरीके का हंगामा नहीं होगा। बावजूद उसके पुलिस का ये कहना है कि इजाजत ही नहीं है इस जोन में इस तरीके से प्रदर्शन की, तो ऐसे में आपको आगे नहीं जाने दिया जा सकता। इस बात की कोई परमिशन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि तमाम जो सांसद हैं वो बैरिकेड की एक तरफ
अड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, और दूसरी तरफ पुलिस ने उनको रोक के रखा हुआ है। आगे तमाम व्यवस्था भी की गई है। अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो इधर आप देखें तो वाटर कैनन की गाड़ियां तक मौजूद हैं, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, और इसके बीच में सांसद जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जबरन उन्हें रोका जा रहा है। वो अपनी मांग अगर संसद में रखते हैं तो वहां पर उन्हें अपनी मांग नहीं रखने दी जाती है। वहां पर भी लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में उसकी चर्चा नहीं कराई जा रही है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और इस संवैधानिक संस्था को लेकर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इस पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष का ये कहना है कि खुद पुराने स्पीकर जो रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा हो सकती है, तो फिर अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। तो संसद का ना तो सत्र चल पा रहा है इस हंगामे की वजह से, और अब ये स्थिति है कि संसद के बाहर की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सांसद तमाम जो है वो बाहर निकलने की कवायद कर रहे हैं, कुछ लोग बैरिकेड पे चढ़े, उनको वहां से उतारा गया पुलिस की तरफ से, और अब ये कहा जा रहा है कि आपका प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाना चाहिए, आप अंदर चले जाएं, ज्यादा देर तक रहेंगे तो डिटेन करना पड़ सकता है। तो तमाम लोगों को लगातार यहाँ पर से अलर्ट किया जा रहा है, उन्हें अनाउंसमेंट की जा रही है। राहुल गांधी को भी समझाने की कोशिश की जा रही है, तमाम जो बड़े नेता हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि अपने सांसदों को निर्देश दें और वापस संसद भवन की तरफ लौट जाएं। लेकिन इस वक्त की स्थिति यह है कि सभी लोग अड़े हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस डेलीगेशन की बात कही है, जिन 10-12 सांसदों को आपको भेजना है, आप उस डेलीगेशन को भेज सकते हैं ताकि वो अपना जो मेमोरेंडम है वो वहां पर सौंप दे। लेकिन इस पर भी बात नहीं बन पा रही है, इस पर भी कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि संयुक्त तौर पर ये मार्च निकाला गया है, संयुक्त तौर पर वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद अपना मेमोरेंडम जो है वो चुनाव आयोग को सौंपेंगे। तो फिलहाल की स्थिति आप देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा बलों के बीच तमाम सांसद यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए, आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, और पुलिस जो है वो जबरन जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। जी ठीक, दीपक आप बने रहिएगा हमारे साथ अंकित गुप्ता भी संसद भवन से लगातार हमें तस्वीरों के साथ अपडेट दे रहे हैं। अंकित देखिए, यहाँ पर दीपक रावत भी लगातार बता रहे हैं कि फिलहाल जो सांसद हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और वो चाहते हैं कि संयुक्त रूप से जो रैली निकाली जा रही है सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों के द्वारा, वो इलेक्शन कमीशन तक जाना चाहते हैं और वहां पर मेमोरेंडम सौंपना चाहते हैं। ऐसे में उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं। अंकित देखिए, मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यहीं तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। मोहित भाई थोड़ा आगे आ जाओ। नहीं रास्ता कर दो तो हम कर लेंगे। क्या इसके निशाने पर ऐसे बैठो, क्या इसके निशाने पे सबसे ज्यादा पीड़ित समाज है? ये देखो, निशाने पे सबसे ज्यादा पीड़ित समाज, ये देखो पुलिस से वोट रुकवा रहे हैं, पुलिस से ही हमें रुकवा रहे हैं। आप रास्ता बना लो, हम लोग चल रहे हैं, रास्ता बना लो। सर मुलाकात नहीं होगी तो धरना करेंगे। क्या आपको लगता है कि दे दे फोटो? બહાર જ પોતાના સમર્થકો સાથે બેસેલા જોવા મળ્યા। ઇલેક્શન કમિશનની ઓફિસની અંદર જવા દેવામાં નથી આવી રહ્યા। તમામનું કહેવું છે કે પરમિશન આ માટે લીધેલી નથી।
માર્ચ માટે પરવાનગી લીધેલી નથી અને આ રીતે આ પ્રિમાઇસીસમાં માર્ચ કરી શકાય નહીં, રેલી કરી શકાય નહીં, પરંતુ સાંસદો, વિપક્ષના સાંસદો અડગ જોવા મળી રહ્યા છે। શશી થરૂર, आप देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर मार्च में शामिल होती हुई दिख रही है। શશી થરૂર, અખિલેશ और યાદવ, देखिए, जो શક્તિસિંહ ગોહિલ, રાહુલ ગાંધીની આગેવાનીમાં આ માર્ચ કાઢવામાં આવી છે। તમામના હાથમાં બેનર્સ જોવા મળી રહ્યા છે અને અખિલેશ યાદવે પોતાના સમર્થકો સાથે ત્યાં જ અડ્ડો જમાવ્યો, ત્યાં જ બેસી ગયેલા રસ્તા ઉપર જોવા મળ્યા। શક્તિસિંહ ગોહિલનું પણ કહેવું છે કે જો તેમના મનમાં પાપ નથી તો શા માટે મળવા દેવામાં નથી આવી રહ્યા, શા માટે ઇલેક્શન કમિશન વિપક્ષના સાંસદોને મળતું નથી અને શા માટે કોઈ બાબતને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી રહી નથી। વિપક્ષે એસઆઈઆર ને વોટ ચોરી ગણાવી છે। બિહારમાં ચાલી રહેલા એસઆઈઆર ને વોટ ચોરી ગણાવી, લોકતંત્ર વિરુદ્ધનું ષડયંત્ર ગણાવ્યું અને તેના વિરોધમાં માર્ચ કાઢવામાં આવી છે। यहाँ पर नहीं की जा रही है और सबकी ये मिली भगत है, ये आरोप क्योंकि लगातार विपक्ष के सांसद नेता लगाते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे मार्च में चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी के तमाम सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद इस मार्च का हिस्सा हैं और बड़ी संख्या में सांसदों के द्वारा ये मार्च निकाला जा रहा है। इस बीच ये तस्वीर भी सामने आई जब अखिलेश यादव बैरिकेड से कूदकर रास्ता पार करते हुए नजर आए और अब वो बैठ गए हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिशें की जा रही है। मांग यही है कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकालने दिया जाए, वहां तक पहुंचने दिया जाए और वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत हो। हालांकि ये भी ऑप्शन दिया गया कि 10 से 15 लोगों को आगे बढ़ने दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष के जो सांसद अड़े हुए हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी केवल सियासी स्टंटबाजी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज मांगना चाह रहे हैं? और बिहार में गरमाया, बांग्लादेशी की घुसपैठ के बाद बंगाल में भी गरमाया और अब ये जो पूरा मुद्दा है वो दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी को तमाम सांसदों का, तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव इस प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं, धरने पर बैठ गई हैं, मार्च में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। और मार्च रोकने पर विपक्षी सांसद अब धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन बैरिकेड्स को भी पार करते हुए आपको अखिलेश यादव तीसरी तस्वीर में नजर आ जाएंगे। इस मार्च में देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और साथ ही टीएमसी के भी सांसद शामिल हैं, जो कि एसआईआर के मुद्दे पर सभी एकजुट होते हुए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाना चाहते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ऑप्शन जरूर दिया जा रहा है यहाँ पर विपक्ष के सांसदों को कि आप 10 से 15 जो सांसद हैं, आप एक टीम बनाकर जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, लेकिन यहाँ पर संयुक्त रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो 250-300 की संख्या है वो सभी एक साथ मार्च निकालना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक। दीपक, क्या स्थिति? जी बिल्कुल। इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो बाहर निकल कर आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीच सड़क पर हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद जो हैं बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़कर आए, तो अब यहाँ पर बीच सड़क पर बैठे हुए वो कह रहे हैं कि अगर आप आगे नहीं जाने देते हैं तो हम यहाँ सड़क पर ही बैठ जाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव खुद बैठ गए हैं। इन्होंने बैरिकेड पर चढ़े, आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने रोका और अब सड़क पर ही बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक आप हमें आगे नहीं जाने देते हम यहाँ से उठेंगे नहीं, पीछे जाएंगे नहीं। इस तरीके का स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ये देखिए पीछे की तरफ पूरे सांसद हैं बैरिकेड के दूसरी तरफ, क्योंकि बैरिकेड से आगे जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये कुछ सांसद थे जो लगातार बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इनमें खुद अखिलेश भी थे। और अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो सांसद जो है यहाँ पर बैठ गए हैं। पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है और ये कहा है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं और पुलिस उनके आसपास जो है किसी को जाने भी नहीं दे रही है। उनको इस तरीके से घेरा बनाकर उनको रोका गया है। तो ये तस्वीरें ट्रांसपोर्ट भवन के लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी। और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो
पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। Being stopped over here only the parliament seat, we are not being allowed to march towards the to ECI. Although the ECI is saying that we are agreed to meet you at 12 o'clock. A delegation of 30 MPs. So how do you see this? So look, for me the issue is very simple. Rahul ji has raised some serious questions, they deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions.